Okay. Welcome to Sir, let me DRTSPR show. change my This is position. Dr. Tangella Shivaprasad Hello. Reddy alias Dr. TSPR. Namaste. ठीक है सर. Adab. Hello. A warm welcome to BV Subbarao Garu and Gajendra Pathak Shitla Khet. He is connecting from again Uttarakhand, Himalayas. Gajendra ji, आपका फिर ऑडियो वीडियो ऑन कीजिए. Yes sir. We have been doing continuous shows so that the Himalayan range governments, the north and the northeast governments, Union Government of India, like for that entire India will start discussing about Himalayas. Without Himalayas, there is no water. Without Himalayas, we cannot have a regulated climate temperature, not just Himalayan lane, entire India and 50% of the world population, right from China to Nepal, everyone is going to suffer. Then why this is not becoming an election issue? As soon as we announce show in Kerala, Mr. Pinarayi Vijayan Communist Party governance, they will remove power. I am doing the show in dark. Yeah, Gajendra Pathak ji, क्या हो रहा है हिमालय सुब्बाराव गारू మీరు స్టార్ట్ చేయండి. स्वागत गजेंद्र पाठक जी. गजेंद्र पाठक जी हैं फॉरेस्ट प्रोटेक्शन कंजर्वेशन पे कहीं 20 साल से ऊपर 25 साल से काम कर रहे हैं. ये हैं शीतला खेत अल्मोड़ा रीजन के उत्तराखंड के वासी. अल्मोड़ा काफी पॉपुलर नाम है उत्तराखंड. तो ये इनकी लड़ाई है नमस्कार सर, धन्यवाद. इनकी लड़ाई है कि जंगलों को आग से कैसे बचाएं. समझ लो कि ये फॉरेस्ट के लिए एक फायर ऑफिसर है विदाउट ए फायर इंजन. तो ये है. और छोटी सी इंट्रोडक्शन है हमारा. So he is गजेंद्र जी, ये जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं पिछले 5 साल से कि हिमालयस एक आइसोलेटेड जगह नहीं है. हिमालयस हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हिमालयस जो एशिया के बहुत बड़े जल भंडार है, यहाँ के बर्फ पिघल रहा है, यहाँ के जंगल आग में लिपट रहे हैं, यहाँ के पर्वत अनसाइंटिफिक डेवलपमेंट में सफर हो रहा है. और इसका असर न केवल हिमालयास में नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तान और 50% से ज्यादा एशियाई में इसकी तबाही हो. तो with this introduction, I invite once again Shri Gajendra Kumar Pathak ji to throw light and enlighten people on the forest fires, okay, of Himalayan region. पाठक जी बात करिए. पाठक जी, आनंद जी. पाठक जी, आपका ऑडियो, आपका वीडियो. बात करिए पाठक जी. నువ్వు ఇది కొంచెం బంద్ చేయి, కొంచెం ఆయన కన్ఫ్యూజ్ అవుతాడేమో. లే ఆయన రాలేదు సార్, ఆయన వచ్చిపోతున్నాడు. पाठक जी, प्लीज कनेक्ट. ऑडियो तो भी बात कीजिए सर. We are discussing about forest fire. Supreme Court summons Uttarakhand Chief Secretary over very sorry state of affairs. Yesterday in Supreme Court, the bench says that the approach of the state of Uttarakhand in controlling fires is, to say the least, lackadaisical. We have said there is a big quid pro quo. Electoral bonds have exposed corporates' nexus with political parties, whether it is BJP-led NDA, Congress-led India, or UPA. All are one and the same. आ जाइए, कनेक्ट आ जाइए. Whether it is TMC or anyone. आपका इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है. The top court was hearing a play on raging forest fires in Uttarakhand. अच्छा.
upset over a very sorry state of affairs in dealing with forest fires in Uttarakhand, the Supreme Court on Wednesday directed the State Chief Secretary to personally appear before it on May 17th and explain underutilization of funds and delay in filling up vacancies so that they can safeguard. See, such a big conspiracy. We are at pains to say that the approach of the state of Uttarakhand in controlling the fires is, to say the least, lackadaisical. Though action plans have been prepared and finalized, no steps are being taken for implementation of the same, a bench led by Justice B.R. Gawai said. On the last date, the rosy picture you depicted was not correct. We find that the state needs to take some concrete decisions, said the bench, which also included Justice S.V.N. Bhatti, Justice Sandeep Mehta. It directed the central to spell out its stand on timely disbursement of National Disaster Management Fund and funds under centrally sponsored schemes. The top court asked Chief Secretary to explain why Forest Department personnel were deployed in election duty despite an exemption given by the Election Commission. This is a big news. Supreme Court pulls up both central government as well as Uttarakhand government as to why Forest Department officials were allowed to go on election duty. They were given exemption so that they can protect our forest. या गजेंद्र पाठक जी, क्या हो रहा है? ये जंगल में आग क्यों लग रहा है? ये जो संविधान की सवरना जो की है एनडीए मोदी सरकार ने, हमारी जंगलों को पूरे कारपोरेट्स को सोचने की, उनके हाथ में देने की जो प्रक्रिया है सवरना, उसका ये फलस्वरूप है क्या? क्योंकि हम यहाँ विकाराबाद नहीं, क्या बोलिए सर, बोलिए। इसको इस तरह से नहीं देखा जाए कि ये जंगल कॉर्पोरेट्स को दिए गए हैं, इससे जंगलों में आग लग रही है। ये जंगल अभी जनता के ही है, जनता के स्वामित्व में है और सरकार द्वारा इनकी ही देखभाल की जा रही है। लेकिन जो मूल कारण है जंगलों में आग लगने का, उसको ध्यान देने के बजाय हम लोग और चीजों पर ध्यान दे रहे हैं। इसी वजह से जंगलों पर आग लंबे समय से काबू पर नहीं आ पा रही है। अभी भी हम लोग जंगलों में आग के लिए प्रकृति को दोषी ठहरा रहे हैं कि भैया पाइन नीडल्स के कारण आग लग रही है या बायोमास के कारण आग लग रही है, जबकि 100% मामलों में ह्यूमन इंटरवेंशन है, आदमी की लापरवाही से, आदमी की गलती से आग लग रही है। तो ये विमर्श की दिशा सही होने से ये समस्या का समाधान हो सकता है। जैसा कि हमारे पिछले 20 साल के अनुभव कहते हैं कि अगर सरकार और जनता मिलकर काम करें, जन और तंत्र मिलकर काम करें, तो हम लोग फॉरेस्ट फायर को बहुत बढ़िया ढंग से रिजॉल्व कर सकते हैं, इसको एड्रेस कर सकते हैं। ये कोई ऐसी समस्या नहीं जो लाइलाज हो चुकी है। थोड़ा सा सरकार की ओर से इसमें पहल करने की आवश्यकता है, जनता को अपने साथ जोड़ने की आवश्यकता है, तभी ये जंगल बचाए जा सकते हैं। नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को चेतावनी दी है। इसके पहले जब आप सुप्रीम कोर्ट में आए, आप काफी अच्छे बात किए हैं। रोजी पिक्चर जो हम कहते हैं ना, रोज फूल के जैसा आप बात किया है, लेकिन आज पूरा जंगल जल रहा है। और ये भी बोला कि आप फॉरेस्ट अधिकारी को क्यों इलेक्शन ड्यूटी पे भेजा है, उनको एग्जम्पशन दिया गया। क्या ये जानबूझकर हो रहा है? ये सुप्रीम कोर्ट का कल विचारण हुआ और फिर कल 17 को फिर से ये आगे जाएगा आज के दिन। तो आप किस तरह देखते हैं ये सब कुछ? देखिए, उत्तराखंड के जंगलों में आग लगना कोई नई घटना नहीं है। हम लोग लंबे समय से 2012, 2016, 2020 हर तीसरे चौथे साल में उत्तराखंड के जंगलों में आग लग रही है। और निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, क्योंकि उत्तराखंड पूरे देश को गंगा यमुना जैसी नदियों से पानी पिला रहा है। यहाँ की इकोलॉजी का पूरे देश के एनवायरनमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है। ऐसे में इन जंगलों की सुरक्षा के लिए जो प्रयास होने चाहिए वो अभी तक जो है वो पोस्ट फायर के हैं कि आग लगने के बाद हम क्या करेंगे। जबकि जो हमारे अध्ययन कहता है वो कहता है कि प्लानिंग आपकी पहले से होनी चाहिए। जिन कारणों से आग लग रही है उन कारणों को एड्रेस किया जाए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सुसज्जित किया जाए, उनको पावर दी जाए, उनको रिसोर्सेज दिए जाए। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। उत्तराखंड का जो एक्चुअल एरिया है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, फॉरेस्ट का, वो 38,000 वर्ग किलोमीटर का है। कितना और और इसकी एक बार बताएंगे कितना है वो? 38,500 वर्ग किलोमीटर, 38,537 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर। या लेकिन इस पर जो इस जंगल की रक्षा की जो जिम्मेदारी है, वो जो
कोर स्टाफ है जिसमें वन दरोगा है और वन बिट अधिकारी हैं, उनका जो कैडर है वो कमोबेश 2000 के आसपास है। और उसके अलावा अगर इसमें आप 4000 फायर वाचर भी जोड़ लें तो कुल मिला के 6000 लोग होते हैं। इतना बड़ा जंगल, 6000 लोग, और दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र है, कहीं ऊंची पहाड़ियां हैं, 6-6 हजार फीट की पहाड़ियां हैं, कहीं गहरी खाइयां हैं। तो ऐसे में इन 6000 लोगों के बूते की बात नहीं है कि वो जंगलों को आग से सुरक्षित रख सकें। उसका एक ही समाधान है कि जन सहयोग, जन सहभागिता, जनता को जंगलों की आग से जोड़ने का प्रयास किया जाए, जैसा कि हम लोग पिछले 20 साल से यहाँ पर देवी शीतला के क्षेत्र में कर रहे हैं। हमारे एक जंगल के दोस्त ग्रुप है। हम उस जंगल के दोस्त इसलिए बनाए हैं क्योंकि जंगल हमारे हैं। अल्टीमेटली हम आपके माध्यम से सबको बताना। आपकी आवाज में थोड़ी खेद है, आवाज नहीं आ रही है पाठक जी। सर या पाठक जी, आवाज सॉरी सर, बीच में टूट गया कनेक्टिविटी था। इशू, कनेक्टिविटी। या तो बोलिए, आप कुछ बोल रहे थे। हाँ, जंगल के तो मैं दोस्त। ये कहना चाह रहा हूँ कि जंगल जो है जनता के हैं। अभी भी जनता को जंगलों से बहुत सारे लाभ प्राप्त हैं। हवा पानी को अगर आप एक किनारे रख दें, वो तो हमारा आधारभूत जीवन के लिए आवश्यक है। उसके अलावा जो बेसिक चीज है, घास है, लकड़ी है, पिरूल है, लीसा है, छिलका है, गुलिया है, तख्ते, बल्ली, ये सब जो जंगल से मिल रहा है, उस वक्त अगर जंगल जनता के हैं तो आग लगते वक्त और नुकसान होते समय भी वो जनता के ही हैं। यही हम लोगों ने ओनरशिप की भावना जनता में डेवलप की है कि जंगल हमारे हैं और हमको ही बचाने हैं। हमको इसलिए बचाने हैं क्योंकि हमारा मानना है कि सरकार के पास जो मैन पावर है, जो रिसोर्सेज है वन विभाग के पास, दे आर नॉट। There is some technical problem because he is just speaking from far Uttarakhand. We are trying to hear from him. जंगल के दोस्त उत्तराखंड, हमारे गजेंद्र पाठक जी. We will connect him back. पाठक But जी, one thing is, the manpower shortage and resources shortage is always there with the forest no, sir, department. no, Right, Subbarao Garu, because you right are from- very clear. No, Subbarao Garu, Supreme Court is very clear. It said it it castigated Uttarakhand government. Why did you not employ more, or why you did not go for employment? We have clearly told you there were so many vacancies. Why you did not fill those vacancies? Supreme Court is very see, clear. one thing I would like to make very clear, Dr. Shiv Prasad Garu. We are not here to discuss and debate on, why not and other things. You see, you look at the thing. It thanks that, Supreme Court at least realized now that Forest Department has lesser staff. Okay? It's very good in the statement and what you also pointed out. And not only that, it But clearly, Supreme Court clearly stated forest officials were exempted in these Himalayan regions. They are there to protect forests, not for election duties. That is also big. one thing is, let us go one after the other. Yeah, please. First thing is lesser staff. Yeah. Why adequate staff is not, employed in the forest? Yes. At least now Supreme Court is asking. Okay? Yeah. The crisis in Himalayas made the Supreme Court to come out. But my knowledge last 36 years with the Forest Department, there is always shortage of the manpower at the ground. No attempts have been made. Forest Department was always viewed by the governing system as a revenue giving resource. लकड़ी बेच लो, वो बेच लो, ये बेच लो, अब क्या है, इको टूरिज्म. But nothing has been invested. Okay, that is one big problem. I think Pathak ji, Gajendra ji, Gajendra ji, सुन रहे हो is सर? active? नहीं, that's what I'm trying to check. गजेंद्र जी, आप सुनाई दे रहा है आपको? हाँ, सुनाई दे रहा। थोड़ा सा कनेक्टिविटी इशू के लिए सॉरी सर, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। नहीं, कोई बात चिंतित नहीं। करिए। मैं नहीं, ये कह आपसे रहा- सीधा सवाल, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि आप वैकेंसीज है, आप वैकेंसीज क्यों आप फिल नहीं किया, और फॉरेस्ट ऑफिशियल्स को हम इलेक्शन कमीशन ड्यूटी से एग्जम्पशन दिया, वो जाने की जरूरत नहीं थी, आप क्यों ने आप उनको भेजा? और पिछले जब आए सुप्रीम कोर्ट में, आपने ये सब कुछ बताया कि हम ये जंगल के जो भी है, फायर है, कुछ भी है, आग है, उनको हम
नियंत्रण में रखे हैं, ये सब कुछ आपने तोड़ा क्यों? और चीफ सेक्रेटरी को वहां सुप्रीम कोर्ट में बुलाया, क्या वजह है ये सब, और क्या कारण है ये जंगल के आग का? what are the reasons for forest fire? Why so many vacancies in spite of Supreme Court ordering them? Why the officials are being sent to Election Commission in spite of exemption? Sir, Gajendra ji. Gajendra Pathak ji, please. बोलिए आप. वीडियो बंद करके ऑडियो बात करिए सर. सर ना कोई. I'm trying to connect him through audio. Sir, మీరు చెప్పండి అప్పటి వరకు. These three, you are talking about vacancies. You see, the perspective towards the forest department was always on a negative wavelength from the governance systems last 75 years. They were only looking forest department as a revenue generating resource, and no serious attempts have been made in strengthening the forest department through employing adequate staff right from the grassroots. Okay, hope Mr. Pathak ji आप सुन सकते हैं. बात करिए पाठक जी, आप सुन सकते हैं ना? बात करिए, बात करिए. हाँ, आपकी आवाज अब आ रही है. बोलिए सर. देखिए, मैं एक दो तीन सर, लेट हिम स्पीक सर. नाउ बात करिए सर. मला कनेक्टेड डिस्कनेक्टेड. मैं एक दो तीन चीज आपके सामने रखना चाहता हूँ. यू विल गेट फिर डिस्कनेक्टेड. उसके बाद आपने विश्लेषण दे दीजिए, आप ही का है. तो नंबर 1 है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को हमेशा एक रेवेन्यू जनरेटिंग रिसोर्स के जैसा 75 ईयर्स से हर एक गवर्नमेंट ने डिपार्टमेंट में इन्वेस्टमेंट कम और रेवेन्यू लेना ज्यादा था. फिर उसके बाद आया 90s में जॉइंट फॉरेस्ट्री और वगैरह वगैरह. फिर भी आज भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में staff right from grassroots level to higher ups, we have very shortage of, particularly in the forest fires issues. I am associated and I observed the forest department last 35 years. This is one aspect. Now, so Himalayan crisis at least made the Supreme Court to come out, give a statement that why department is not recruiting. Yes, it is the answer department should give. That is very important. You have 38,532 square kilometers area of the Himalayan forest. And you said, as per your record, there are 6,000 people. Okay? That means almost you have 6 people per square kilometer. Okay? And what is lacking in the forest department is people's participation. They only talk of people's participation whenever there is a World Bank project or an international project. That is this. It's very sad thing. And today, even Supreme Court is asking them, you are getting so much money under the compensatory afforestation program. Why so much compensatory forest program in Himalayas? What is the status? What are the evaluation reports of Kampa in Himalayan region, particularly in the Uttarakhand? And my final question is, query, it's not question to anybody, but we need to clarify to the people and all. Okay? Entire India last 2 years, the temperatures are very maximum, very hottest. Okay? And this year, entire India became a Rajasthan, except for Himalayas in the northwest, and towards Nepal, and then. गजानन जी, आप इसे ऑडियो से बात कर सकते हैं आप. तो
If that be the क्योंकि case, वो डिस्कनेक्ट हो रहा है इसीलिए जो इंक्रीज टेम्परेचर्स है, इसका असर हिमालयन फॉरेस्ट फायर्स पे कुछ है क्या? आप कह रहे हैं कोई कॉर्पोरेट नहीं है, कोई नहीं है, ये इट्स ए नेचुरल थिंग, फॉरेस्ट फायर्स. If that be the case, Forest Research Institution in Dehradun, is it conducting any action research in Uttarakhand forest on the reasons and causes of forest fires? लेट हिम टॉक सर. I have not come across any. लेट हिम स्पीक नाउ. बात करिए सर. सुब्बाराव जी, मुझे एक चीज आप क्लियर करने दीजिए. देखिए, हम लोग पिछले 3 साल से जो काम कर रहे हैं, इसके आधार पर हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि पब्लिक और सरकार का पार्टिसिपेशन होना चाहिए. हम लोग इसी परिसर में, इसी परिदृश्य में बात कर सकते हैं. बाकी एफआरआई क्या कर रही है या सरकार क्या कर रही है, मैं उस एंगल से बात नहीं कर पाऊंगा. मैं केवल अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर पाऊंगा कि फॉरेस्ट फायर की कॉजेज क्या है, कैसे हम उसको एड्रेस कर सकते हैं और कैसे उसको पता निकल सकता है. बताइए. सरकार के बारे में या किसी नहीं, वो छोड़िए, उसमें नहीं जाएंगे. क्यों हो रहा फॉरेस्ट फायर, बताइए. आप क्या बताना चाह रहे हैं, बताइए. हम लोग जड़ पे जाए. फॉरेस्ट फायर के जो पीछे कॉजेज है, देखिए हम लोग उसकी अगर बात करें, फॉरेस्ट फायर के जो अब तक जो है, जो पॉलिसी लेकर हैं इन लोगों द्वारा या जो लोग है, इन लोगों द्वारा बार बार ये बात कही जा रही है कि चीड़ के कारण आग लग रही है या जो जंगल में जो बायोमास है उसके कारण आग लग रही है. सर सुब्बाराव गारू, हकीकत ये है कि सब 100% मामलों में न बायोमास के कारण आग लग रही है, न चीड़ के बल्कि लग रही है आदमी के कारण. ह्यूमन इंटरवेंशन है. चाहे वो एक परंपरा है हमारे वहाँ गाँव में, जो वीड्स है, खरपतवार है, उनको जलाने की परंपरा है, या किसी ग्रामीण द्वारा लापरवाही से जलती हुई माचिस को पीली काटने की परंपरा है या लापरवाही है. जो ह्यूमन नेग्लिजेंस है, जो मेन कारण है जंगलों में आग लगने का. तो जब तक हम लोग इस निष्कर्ष पर, इस परिस्थिति पर बात नहीं करते कि दोषी कौन, क्या प्रकृति दोषी है जिसको हम फाइल के रूप में कह रहे हैं, अल्पाइन या टेबल के रूप में कह रहे हैं, या ह्यूमन बीइंग, तब तक इस समस्या का समाधान नहीं निकल सकता है. ये जो बेसिक कारण है वो ये है कि ह्यूमन जो इंटरवेंशन है वो है जंगलों में आग का कारण. बताइए, बात करते जाइए. अब बात आती है इसका समाधान कैसे हो. तो इसका मैंने आपको एक तरीका बताया था कि यह इतना बड़ा भूभाग है, इसमें इतना सीमित कैडर है जो जंगलों की रक्षा के लिए उत्तरदायी है. ये इम्पॉसिबल है कि इसके बीते जंगल बच सकते हैं. ऐसे में पब्लिक को आगे आके सरकार को सपोर्ट करना होगा और सरकार को भी उसके हिसाब से पॉलिसीज बनानी होगी, कैसे पब्लिक सपोर्ट को जिताया जा सके, कैसे लोगों को जोड़ा जा सके जंगलों से, तभी जाके जंगल बच सकते हैं. जो जन और तंत्र का प्रयास है, जन का मतलब है इसमें पब्लिक, स्पेशली महिला मंगल दल और जो ग्रामीण है, युवा है, और तंत्र का मतलब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ये दोनों मिलकर अगर काम करें. और हमारा मानना है कि पोस्ट फायर एफर्ट्स करने के बजाय आग लगे ही ना, हमको इस दिशा में ज्यादा प्रयास करने चाहिए और प्रोएक्टिव अप्रोच होनी चाहिए. प्रोएक्टिव अप्रोच से मेरा आशय ये है कि जिन जिन कारणों से आग लग रही है पहले हम उनका समाधान करें, और जिन जिन जगहों पर आग लगने की संभावनाएं ज्यादा है, जहाँ पर आग लगने की घटनाएं ज्यादा हो रही है, उस एरिया में हम लोग काम करें तो निश्चित रूप से हम लोग आग लगने के मामलों को बहुत बड़ी हद तक रोक सकते हैं. जैसा कि हम लोगों ने पिछला के पहले भी क्षेत्र में किया है. यहाँ पर 30 से अधिक गाँव की महिलाएं हैं जो वन विभाग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर फॉरेस्ट फायर पे काम कर रही है. और एक जो बड़ा कारण है जंगलों में आग लगने का, वो है और जलाने की परंपरा, और आड़ा टेढ़ा बोलते हैं. ये इस तरह की परंपरा नहीं है जिस तरह से पंजाब या हरियाणा के राज्यों में पराली जलाते हैं. ये एक दूसरी टेक्निक है जिसमें खेत को साफ किया जाता है वीड से, खरपतवार से, और उस वीड को सुखा के जलाया जाता है. अतीत में ये जो आग थी निरापद थी, जंगलों तक नहीं जाती थी, क्योंकि लंबे समय से जो क्लाइमेटिक चेंज है, जो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के कारण विंटर की स्पेशली रेनफॉल और स्नोफॉल हमारे पहाड़ में, उत्तराखंड में, पूरे हिमालय में कम हो गया है, सिग्निफिकेंटली कम हो गया है. उसकी वजह से जो ड्राई स्पेल है वो मार्च अप्रैल की बजाय जनवरी फरवरी से स्टार्ट हो जा रहा है. और इसकी वजह से जो भी कोई भी घटना कहीं पर और जलाने की है, आया जलाने की, वो जंगलों में जाके बड़ी बबली बनावी दुर्घटनाओं का सबब बन रहा है. तो इस
परंपरा को अगर हम लोग कंट्रोल कर सके, हम लोग 31 मार्च से पहले हम लोग इस पूरे काम को कर लें, तो हम आग लगने के मामलों में 90% तक की कमी ला सकते हैं। अब जो बात मैंने कही कि 31 मार्च से पहले, उसको थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है कि 31 मार्च से पहले क्यों कहा जा रहा है। 31 मार्च के बाद अप्रैल मई जून के महीने में गर्मी ज्यादा बढ़ जाती है, चीड़ के पेड़ में पतझड़ होता है, फिर ज्यादा गिरता है, पीछे तेज हवाएं चलती है। ये तीन जो कारक है, वायुमार्ग का इकट्ठा होना, गर्मी का बढ़ना और तेज हवा को चलना, ये आग लगने की घटनाओं को बहुत ज्यादा ताकत प्रदान करता है। अगर हम लोग इस काम को 31 मार्च से पहले कर सके तो आग लगने के 90% मामले रोके जा सकते हैं। दूसरा जो शिक्षा के मॉडल कहता है वो ये है कि गोल्डन आवर, जैसे कि आपको पता है रोड साइड एक्सीडेंट होते हैं, ब्रेन हेमरेज होता है, कार्डियक अरेस्ट होता है, इसमें अगर मरीज को पहले 1 घंटे में अस्पताल पहुंचा दिया जाए तो उसके बचने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती है। यही स्थिति फॉरेस्ट फायर के केस में भी है कि अगर हम फॉरेस्ट फायर को पहले 1 घंटे में एड्रेस कर सके जब वो शुरुआत ही हो रही है, तो आग की तीव्रता को और आग के नुकसान को हम निश्चित रूप से कम कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि पहले 1 घंटे में अर्थात गोल्डन आवर में उसके पास कौन जा सकता है। तो इसका उत्तर है उस इस गोल्डन आवर में, उस पहले 1 घंटे में गांव का कोई बासिंदा, गांव की महिला, गांव का कोई युवा जिस इलाके से आग आरंभ हो गई है वहां पर जाए तो आराम से आग को वन विभाग के लोगों के पहुंचने तक नियंत्रित किया जा सकता है। और यही हमारे क्षेत्र में हो रहा है। महिलाएं हैं, चाहे ग्रामीण है, चाहे युवा है, तो वन विभाग का इंतजार नहीं करते कि वन विभाग आएंगे, वो आग बुझाएंगे तब हमारी आग बुझेगी। लोग जितना हो सकता है एफर्ट डालते हैं और अधिकतर मामलों में वन विभाग के आने से पहले आग हमारी नियंत्रित हो जाती है। तो ये दो चीजें अगर हम कर सके कि जो आग के कारण है उनको हम चिन्हित करें, उनको पहचाने, उनको रोकें, एक और दूसरा अगर फिर भी आग लग जाती है तो पहले 1 घंटे में हम उसको जनता के सिरे से एड्रेस कर सकें। तो सर्दियां जो हमारा पूरा हिमालय है, जो उत्तराखंड है, जो पूरे गंगा यमुना का उद्गम स्थल है, इसके जंगलों को बचाना संभव है। ये हमारा निवेदन है। तो एक है उसमें सुब्बाराव जी के पहले सुप्रीम कोर्ट ने खुलासा किया कि भाई आप हम बोलने के बाद भी इतने वैकेंसीज है, आप क्यों फिलअप नहीं किया। तो ये क्यों नहीं किया हम नहीं कह रहे, पाठक जी, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कल उत्तराखंड की सरकार को। मैं हम लोग सुप्रीम कोर्ट का ध्यान दे रहे हैं, लेकिन मैं इस वक्त ये कहने की स्थिति में सरकार ने ये किया वो नहीं किया, ये नहीं, आप सुनिए, आप कौन करना सर जी, आप पाठक जी मैं आपसे सहमत हूं, लेकिन आग वहां पर उत्तराखंड में जल रहे हैं, जंगल जल रहा है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के दायित्व में आया। वो क्लियरली पूछ रहा, भाई जब आप लास्ट टाइम आए इतने वैकेंसीज थे, आज तक वैकेंसीज आप क्यों नहीं फिलअप किया। और बिना वैकेंसी से आप जैसा बोल रहे, जब हम लोग इकट्ठा होके अगर जहां से आग आती है और आग के कारण भी बताए, आप रोक सकते तो वहां पर रुकना, लेकिन नहीं रुका। जब नहीं रुका, वन विभाग, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का दायित्व बनता है उसको रोकना। लेकिन वो ये लोग वैकेंसी जब फिलअप नहीं किया और जो भी थोड़ी बहुत स्टाफ है उनको अगर इलेक्शन कमीशन में भेजा, तो आप किस तरह उसको बचा सकते सर। देखिए, मैं सरकार की जो कर्मचारी या उसको बचाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना पक्ष रख रहा हूँ जो जनता का पक्ष है। देखिए, हम लोग यहाँ पर जो हम काम कर रहे हैं, मैं अल्टीमेटली उसकी बात आपसे कहना चाह रहा हूँ। और जहाँ वैकेंसीज की बात है, इस बीच वन बीट अधिकारी के बहुत सारे पद भरे गए हैं, वन दरोगा के पद भी भरे गए हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश एक ही जो घटना हुई है वो था कि चुनाव आयोग चुनाव में इनकी ड्यूटी को तोड़ के लगाई गई थी। वो अगर रोका जा सकता था तो बेहतर होता। ठीक है, और आप जो बताए हैं इतने साल में इतनी बार आग हो रही है वहां पर, जंगल में, हिमालय में जंगल जल रहे हैं, उसको निवारण करने की उपाय क्यों नहीं किया जा रहा। आप जितनी सरल से आप बताया, हर एक वहां पर हिमालय के पहाड़ी के लोग, क्या उनको जानकारी नहीं है, या नहीं तो ये पर्यटक क्षेत्र बनने से उसमें दिक्कत हो रही क्या। देखिए सर, मैं ये क्यों नहीं किया गया का जवाब तो सरकार दे सकती है कि क्यों नहीं किया गया। लेकिन जो मैं इतना इतना बताना चाहूंगा कि हमारे एंगल से जो प्रयास किए गए हैं वो एक मॉडल के रूप में सरकार को, आप लोगों को, माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी हम लोग एक निवेदन करना चाह रहे हैं कि चारों ओर अंधेरा है, एक जगह दिया जल रहा है, उस दिए की रोशनी में एक आपको इशारा मिल रहा है कि ये शराब की जंगलों की आग बहुत शराब होना चाहिए। तो मैं चाहूंगा उस दिए की रोशनी के बारे में सबको बताया जाए, बाकी अंधेरे के बारे में बताने के बारे में कुछ नहीं कहना चाहूंगा।
तो वो रोशनी क्या होगी? अगर वो रोशनी की शब्द क्या होंगे? सुप्रीम कोर्ट भी सुनेगा, बताइए। रोशनी यही है कि पब्लिक और सरकार का दोनों का मिला जुला तालमेल होना चाहिए। अभी मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से 8-8 हजार फीट की ऊंची पहाड़ियों में आग लगती है, इस आग को अगर आप आर्मी भी उतार दें उसके बाद, जैसे अभी बीच में सरकार ने हेलीकॉप्टर से पानी डाला था आग बुझाने के लिए, तो मैं निवेदन करना चाहूंगा, एक बार जब आग अपनी लपटें पकड़ लेती है और उसकी तीव्रता बढ़ जाती है, तो फिर उसके बाद उसको रुकना लिटरली इम्पॉसिबल है, कोई कुछ नहीं कर सकता है। हम लोग पहले 1 घंटे में अगर आग को रोक सके, और दूसरा हमारे पास फायर लाइन्स हो, अगर सुव्यवस्थित फायर लाइन्स हो, कि जो काम अगर सरकार हमको मदद करे, तो निश्चित रूप से हम आने वाले समय में फॉरेस्ट फायर की संख्याओं की बहुत हद तक रोक सकते हैं। और इस पूरे पहाड़ी राज्य जिसके लिए आप भी चिंतित है, क्योंकि ये हमारे का मुकुट है पूरे भारत का, और इसके लिए जो संवेदना है, इसके लिए मैं आपको साधुवाद दूंगा कि आपने भी इतनी चिंता इतनी दूर से जताई है। तो ये पूरे उत्तराखंड का मुकुट सुरक्षित रखा जा सकता है आगे के सिलसिले में। या अब बने रहिए सर। सुब्बाराव जी, हमारे को 5 मिनट है। जो सवरण किया गया पार्लियामेंट में फॉरेस्ट का, जंगल का, कारपोरेट्स को विकास के नाम पे सौंपने की, इसको किस तरह देते? ये कुछ बाधा या क्षति पहुंच सकता है क्या? जो रोशन जो बताया है गोल्डन आवर, अगर ये गोल्डन आवर में अगर आग को हम जहां आगे बढ़ने ही नहीं दिया, लेकिन इतनी ऊंचाई जो पाठक जी बोल रहे, उतनी ऊंचाई कौन जाएगा, किस तरह होगा? आपका राय सुब्बाराव साहब, 5 मिनट है। नहीं, तो मैं पाठक जी से सहमत हूं कि सरकार और जनता जुड़ना चाहिए, मगर ये बहुत से लोग इस मुद्दे को आगे लाते हैं, मगर मुझे ये समझ में नहीं आता, एक लोकतंत्र देश में सरकार को प्रजा से मिलकर काम करने का कौन रोक रहा है? कोई नहीं तो रोक रहा है। ऐसा कोई कानून नहीं है कि सरकार पब्लिक को इन्वॉल्व नहीं कर सकती है। मुझे बड़ा दुख होता है, बार बार सुनता हूँ कि पब्लिक प्रजा मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। अरे प्रजातंत्र का मतलब ही ये है कि पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट। तो इसका सोचने का बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं ये तो सोचता हूँ। क्योंकि अगर इसी में ही तालमेल नहीं है तो बड़ा मुश्किल हो। और हिमालय जैसे इको रीजन में, फ्रेजाइल रीजन और हिली टेरेन में एक्सेसिबिलिटी रहता, लोगों से मिलना बात करना बहुत ही कठिन है। आगे प्लेन एरियाज में ही सरकार और प्रजा के बीच में गठबंधन नहीं है, तो उस हिमालयन रीजन में लाना बहुत ही चैलेंजिंग जॉब है, उसकी जरूरत है। और दूसरी बात यह है, पूरे ये फॉरेस्ट फायर जो नंबर बढ़ रहा है, 1000 कह रहे हैं, तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट का भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। रीजंस कॉजेस ठीक है, आपने भी बताया सरकार ने। वेयर इज द प्रिपेयर्डनेस, वेयर इज द रिस्क रिडक्शन स्टडीज? ये दो पहले होता है आग लगने से, फिर उसके बाद आता है आग लगने के बाद क्राइसिस मैनेजमेंट। क्राइसिस मैनेजमेंट से लेकर के रिलीफ, रेस्क्यू, रिहैबिलिटेशन, ये सब कुछ प्रजा के साथ जुड़ने से ही इसका समाधान मिल सकता है। बस मेरा कहना यही है। और आग हो या ग्लेशियर्स पिघलना हो या सारा हिंदुस्तान का गर्मी हिमालय पे गिर रहा हो, ये कोई छोटी मोटी मुद्दा नहीं है। इट्स ए ग्लोबल इशू। इस ग्लोबल इशू के लिए वी हैव टू थिंक ऑफ इवन बेस्ट प्रैक्टिसेस आउटसाइड द कंट्री। राइट, It's time for us to realize this, राइट सर। you know, या पाठक जी, आखिरी बात intensity. क्या करना चाहते हैं? 2 मिनट बचे। देखिए, अभी सर मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा, अभी 2 साल पहले पूरा देश कोरोना की क्रांति से जूझ रहा था। कोरोना एक बहुत बड़ी महामारी के रूप में आई थी, तो उस वक्त भी जनता ने जब सपोर्ट किया, तब जाके कोरोना पे काबू कर पाया था।
तो ऐसा ही प्रयास सरकार की ओर से होना चाहिए कि जनता को अपने साथ जोड़े, जनता को समझाए और जनता को अपने साथ जोड़े, उनको आर्थिक संसाधन दे, उनको जो जरूरत है उनको फायर रेक्स है, हेडलैम्प है, जूते हैं, जो भी आवश्यक संसाधन है मॉनिटरी सपोर्ट वो करें। तो निश्चित रूप से अभी भी उत्तराखंड की जनता अपने जंगलों से प्यार करती है, लेकिन जंगलों के बगैर इसका जीवन संभव नहीं है। Right. जंगलों के बारे में दो पंक्तियां कही गई सर कि जंगल के क्या है उपकार, लिट्टी पानी और बयार। लिट्टी पानी और बयार यह सब जीवन के आधार। ये जो मिट्टी और पानी और क्लाइमेट है ये सब जो जंगल से मिलता है, इसको बहुत लोग जानते हैं, मानते हैं। बस सरकार को ये करना है कि थोड़ा सा जनता को अपने साथ जोड़े और उसको समझाए और उसके साथ आर्थिक सहयोग भी करे। मैं यही कहना चाहूंगा कि जो त्रासदी है हर साल जंगलों में आग लगने की, इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं और ये पूरे देश के लिए एक राहत के विषय होगा अगर हम जंगल की आग को रोक पाए। Wonderful. So this is what we say, Supreme Court, preparedness, awareness. Once you become aware, then you should have preparedness. You should be very well prepared to prevent it in the very first golden hour. And even to see that there is no golden hour, you should go back to the causes of these fire and past, present in Himalayas, and you want to study, take the world data, see that there is no fire at all. Prevention is better than cure because forests are essential for our forests are essential for our survival, right from water, air, and climatic changes. And with that, the type of food, the type of advantages which forests give, nothing, no other commodity can literally give us. Thank you very much, sir. Do support DRTSP channel, Citizen DRTSP channel, and Environment People DRTSP channels. They are all in larger public interest only, and governance should be very transparent and accountable, and it should be in larger public interest with people participatory nature.